Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 दूसरा शमूएल का पुस्तक का 7वां अध्याय से हम कुछ वचन पढ़ते हैं. We look into the second book of Samuel, chapter 7, verses 18 to 20. 18 से 20 तक का वचन पढ़ते हैं. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा. King David went in and sat before the Lord and said. David had this practice of seating himself in the presence of God. दाऊद का ये हमेशा उसका एक आदत था कि परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को बिठा देने का. What a beautiful, beautiful habit. कितना सुंदर एक स्वभाव है. हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है. He is exclaiming, he is wondering, who am I, O Lord God? What is my house that you have brought me thus far? मैं क्या हूं प्रभु और मेरा घराना भी क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया. None other than David is saying this. दाऊद राजा यह कह रहा है. कितना कुछ क्या नहीं किया उसने. What he did not do in accordance with God's will. You stick his neck out, he'll put himself into such risk to do God's will, to save God's people. And he would show such respect and honor to the anointed of the Lord. What a man. लेकिन वो कहता है मैं कौन हूं, मेरा घराना भी क्या है. What am I? And what is my household that you should show so much of mercy and favor to me and bring me hitherto. तब ये प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है. Not only this, it's not only that you brought me safe and secure and put me on the throne, but you have spoken also of your servant's house for a great while to come, for the future, blessings for the offspring. And this is instruction for mankind. Oh Lord God. कहते ऐसे तू निर्देशन देता, ऐसे तू अगुवाई देता है. हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है. दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है. What more can David say to you? He dared not say anything to God. There was nothing that he could have asked for. इससे बढ़कर दाऊद क्या मांग सकता. Oh, our Heavenly Father knows what He knows. Our Heavenly Father knows. We don't have to really struggle. We don't have to force Him to do things for us. He knows what we need and how much we need and at what point of time we need. हमारा पिता परमेश्वर जानता. हमें उसके ऊपर निर्बंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है. वो जानता हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए. कहते मैं क्या पूछ सकता, क्या मांग सकता. हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है. Oh, that's beautiful. You know your servant. All these people, all the saints of God, they had only one confession to make. That you know me, O Lord. As only you can. सारे संत लोग यही कबूल कर कर कहता, तू मुझको जानता प्रभु. पतरस कहता, तू मुझको जानता. You know all about me, Lord. And you also know that I love to love you. पतरस कहते हैं, तू सब कुछ जानता मेरे विषय में. और तू ये भी जानता कि मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं. This is David. He is expressing his heart's response to God's amazing love. Only the meek and humble can respond to God like this. जो दीन और नम्र है,
वही ऐसे प्रत्युत्तर कह सकता। हम आगे बढ़ता, हम पहले राजाओं के पुस्तक में चले जाता, 1 King chapter 3 verse 7 to 9। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। Look at his son Solomon. Look at him. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David. मैं तेरा दास हूं, तूने मुझको राजा बनाया है, मैं राजा बनने का लायक नहीं है। I don't deserve to be king, but you made me king, man, in place of my father David. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. सोलोमन कहता, सुलेमान कहता, मुझको आना जाना भी नहीं आता। If this is not humility and meekness, what is it? अगर ये नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो और क्या है? मुझे जैसा कीड़ा जैसा आदमी इतना अहंकार से बातें करता है, इतने गौर से चलता है। A worm like me walks so proudly, speaks so boastfully. Look at this man. He says, I do not even know how to come in and go out. मुझे इतना भी नहीं मालूम है, बाकी सब आप जानते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। वो परमेश्वर यहोवा से विनती करता, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझदारी दे, give me wisdom, give me understanding, O Lord, that I may lead your people, that I may tend your flock. तेरे जन को चलाने के लिए, तेरे भेड़ बकरियों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझदारी दे, ये कहता हो। और वो प्रार्थना परमेश्वर का अति प्रसन्न करता। That prayer would please the heart of God, man, much more the sacrifices of fat animals, man. बहुत सारे ऐसे पशुओं के जो बलि है उससे कई गुना बढ़कर ये प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न कर देता। How I wish I had this attitude in me. मुझ में ऐसे मनोभाव बने रहे, ऐसा मैं कितना चाहत रखता। वहां से भी हम आगे बढ़ता, वहां से हमें आगे बढ़कर 17 अध्याय में नजर डालना। 17 अध्याय से हम 2-3 वचन पढ़ेंगे। पहले हम 5 पढ़ते, 17 का 5। 1 King 17 chapter 5th verse first। यहोवा के ये वचन मानकर वो यॉर्दन के पूर्व में करीत नामक गाल में जाकर छिपा रहा। He went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Kerith, that is east of Jordan. यॉर्दन के किनारे पे जाकर और उसके पूरे बाग में जाकर, केरीत ऐसे एक नाली है, उसके किनारे पे वो अपने आप को छुपाता। एलिया इतने महान नबी है, वो भविष्य देखता है, such a great prophet, man. He would declare that the heavens will remain shut, it won't rain till he told, till he decreed otherwise. एलिया ने कहा कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा दोबारा, तब तक आसमान से वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। इतना हिम्मत से कहने वाला है, इतना हिम्मत से काम करने वाला है वो। लेकिन अब उसको जाके छुपाना है, वो भी कहा। The Lord did not transport him to a very safe place in a beautiful palace somewhere. बहुत सुंदर राजमहल में उसको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं किया। He asked him to go and to stay put by a little brook, एक छोटा सा नाली के पास जाके बैठने को कहता, और कौवा उसको खिलाएगा। This man of God, this mightily anointed man of God, has to eat of the mouth of a raven. एक कौवा का मुंह से खाना का है। He was willing. Dearly beloved, no questions asked, no complaints raised. कुड़कुड़ाता नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, सवाल नहीं उठाता। That is the chosen servant of God, the greatest of prophet that Israel would ever know. सबसे महान भविष्यद्वक्ता कौवा को मुंह से खाने के लिए तैयार है। वो कहता, he went and
and did exactly as the Lord had commanded. And the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. वो नाली से पीता, कौवा के मुंह से जो गिरता वो खाता. Amen? वहां से भी आगे बढ़ता. हमारे पास बहुत समय नहीं है. 10 में ऐसा लिखा है, he arose and went to Zarephath. और वहां से वो चल दिया, सरफत को गया. कम से कम he was trying to get to settle down there. वो वहां थोड़ा अपने आप को आराम से बिठाने को सोचता था. उसे तू उठो यहां से और सरफत में जाओ. I have asked a very rich family to take care of you. No, I will send you to a poor, impoverished widow, helpless one at a time. मैं तुझे सरफत में भेजता. बहुत संपन्न घर में नहीं भेजता. एक गरीब विधवा के पास भेजता मैं. तू वहां जाओ, वहां बने रहो. He would immediately get up and go. Man, this is how these people were. ये लोग ऐसे थे. वहां से भी हम आगे बढ़ता. बहुत बहुत परिचित भाग होने के कारण मैं भागता हूं वहां से. 19 का 21 पढ़ता. We read from 19th chapter 21st verse. तब उसके पीछे से लौट गए और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया. और वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा. हालेलुया. This is Elisha. He would rush to the field and he will kill the bullocks that he was plowing with. He would go and he will take a yoke of oxen and sacrifice them, boil their flesh with the yokes of the oxen, gave it to the people, and they had. That was his farewell ceremony, send-off meeting. He didn't even go to his household. He didn't say goodbye to his father. So great was the calling upon him. Man, he would humble himself. He'll be so meek to follow this old man, Elijah. We had never met before. ये लिया ये बुढ़ा मनुष्य के पीछे हो जाने के लिए. अभिषेक का चादर उसके ऊपर गिर गया उसके कारण. And because the mantle of anointing had fallen on him, he would follow. Like a sheep, he would follow. Without questioning, he would follow Elijah. एलिया के पीछे जाएगा. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we have seen some of the Old Testament saints, not all of them. हम कुछ ऐसे जुना नियम के संतों के पास गए थे. अब तक सबके पास नहीं जा सका. हम एक चीज देखते हैं, ये सारे संत लोग स्वर्ग के मानदंड के अनुसार बहुत नम्र और बहुत दीन था. लेकिन वही समय पे स्वर्ग के मानदंड के अनुसार ये लोग बहुत हिम्मतवान था, बहुत वीर थे. By the heaven standard, these people were the humblest and the meekest at the same time. They were so bold and so courageous by God's standard. Right? I understand the secret of their boldness, the secret of their courage is this meekness and humility. उनके जीवन को जो हिम्मत है, उसके जीवन में जो दृढ़ता था, हृदय की जो दृढ़ता था, उसका भेद यह है, उसका रहस्य यह है कि ये बहुत दीन और नम्र होकर चलता. By heaven's standards, they were not timid people. They were no cowards. वो लोग डरपुक लोग नहीं थे, भयभीत लोग नहीं थे. महान कार्य किए. अब्राहम को देखो, और राजा लोगों के पीछे करने के लिए इतना हिम्मत है उसके पास. मूसा को देखो कितना हिम्मत किया
फिलो को चेतावनी देने के लिए हिम्मत है उसके पास। हमें इतना ही नहीं, बाद में जब लोगों ने पाप किया, इतना हिम्मत से उसने 3000 लोग को एक दिन में खत्म कर दिया लेवी कुल के लोगों के हाथ से। सच ए बोल्ड मैन। Joshua was bold, man, but that was divine boldness, man. कितने भी संत लोगों के विषय में हमने देखा। Look at David, how bold he was, man. He would face Goliath, cut his head off, man. He was so bold, yet he was among the meekest and the humblest. और ये लोग जन्म से बड़े हिम्मत करने वाले लोग नहीं थे। By nature, Abraham was not a very bold man. It was divine boldness that he had inherited. अब्राहम इतना ऐसे हिम्मत करने वाला आदमी नहीं था जन्म से। वो डरता, वो राजा से डरता। इसके लिए बीवी के विषय में कहता है कि वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरी बहन है। वो डरता, वो नहीं डरता। They had a boldness that is supernatural. उनका जो हिम्मत था, उसका जो courage था, the strength of their heart was a gift from above. That was divine boldness. They wouldn't show courage and boldness to fight for their selfish ends or to protect themselves. अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप में स्वार्थ लाभ के लिए, स्वार्थ इच्छा के लिए उन्होंने कोई हिम्मत नहीं दिखाया। None of these people, but they were bold like lions, amen, being the children of the Lion of Judah. यहूदा के सिंह के संतान होने के कारण, बच्चे होने के कारण उनमें स्वर्गीय हिम्मत था, दृढ़ता था। This is what we are coveting for. Amen, coveting after. फिर हम ऐसे लोगों को भी देखता है, हिम्मत करने वाले लोग थे। हमने देखा उन लोगों को, हवा और आदम को देखा, बेकार की शैतानी हिम्मत है, आज्ञा को उल्लंघन करने वाले। कई को देखा, बहुत बड़ा अपराध करने की हिम्मत, वो शैतान की बात है। Even that was not a natural boldness. That was because of demonic oppression and possession. Dearly beloved, may I differentiate between these two kinds of boldness and the heavenly boldness, the worldly boldness and divine boldness. ये लौकिक शारीरिक जो हिम्मत है और जो आत्मिक हिम्मत है, जो शैतानिक हिम्मत है और जो आत्मिक हिम्मत है, उसमें उसके बीच में का फर्क अंतर हम आज जानते हैं। तो हम लोग यहां भाषण कदम कर सकता अगर जो ये नम्रता और दीनता है जिसके कारण स्वर्गीय हिम्मत और स्वर्गीय सामर्थ्य और स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका भाषण अभी कदम हो सकता अगर वो सिर्फ बीते हुए दिनों के संत लोगों के साथ ही संबंध रखता है। तो if this divine boldness and confidence and divine wisdom and understanding that is birthed out of divine humility and meekness applied to only the Old Testament saints, the sermon can stop here. लेकिन I think it gets extended and it is more profound and more relevant for the New Testament church. मुझे लगता है कि नहीं, बीते हुए दिनों के संत लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए उससे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भविष्य देवताओं के मुंह से सुनते हैं। So we look to the prophets as to listen to what they have to tell us, they have to speak to us. हम यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में चले जाता, उसका 25वां अध्याय में से पढ़ते हैं। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 25 चौथा वचन। क्योंकि तो संकट में दीनों के लिए गढ़ और जो भयानक लोगों का जोखा दीवार पर बाउचर के समान होता था,
तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में एक छाया का स्थान हुआ. You have been a stronghold to the poor, a stronghold to the needy in distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm against a wall. ऐसे दुष्ट लोग क्रूरता से आते हैं, धमकी देते हुए आते हैं. So you form a hedge around the meek and the lowly. Amen. When the cruel, wicked enemy comes in, like a storm, and encamps around you, around the meek and the lowly, God becomes a hedge around him. Amen. A shield around him. You've been a stronghold to the poor, mighty, mighty rock. Amen. A mighty tower. एक ऊंचा गढ़, मजबूत गढ़, दीन के लिए, दरिद्र के लिए. Amen. Stronghold to the poor and a stronghold to the needy in distress. A shelter from the storm, a shade from the heat. जैसे सूरज को ताप से छुपाने वाला छाव बनकर. Amen. तू बने रहता. For whom? For the needy and the meek. जो दीन और दरिद्र है, नम्र है, उसके लिए है. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता. Amen. When I remain humble and meek, I would find myself in the shadow of his wings. I'll be protected by heavenly shield all around. Amen. Hallelujah. And I will experience solace and peace in his presence. जब मैं ऐसे नम्र बनकर रहता, दीन होकर रहता, परमेश्वर के छाव में, पंखों के छाव में सुरक्षित रखूंगा. चारों ओर से स्वर्गीय डाल से वो मुझे सुरक्षित रखेगा और शांति और चैन को मैं अपनाऊंगा. आमीन. वहां से वहां आगे बढ़ता, उसका 29वां अध्याय में नजर डालता. वी मूव फ्रॉम देयर टू 29 चैप्टर और 29 का 19 पढ़ता. 29 and 19. नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे. The meek shall obtain fresh joy in the Lord. Amen. Amen. His heart would be once again gladdened. He would be refreshed. The poor among mankind shall exult in the Holy One of Israel. Amen. और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे. Amen. This doesn't remain limited to only Abraham and Moses and the Old Testament saints like David. ये सिर्फ अब्राहम के लिए, मूसा के लिए और यूनानियम के जो संत लोग हैं, दाऊद जैसा, उनके लिए सिर्फ नहीं है, हमारे लिए है. The meek shall obtain fresh joy in the Lord. Amen. We will be revived and refreshed, says the word. Amen. When I humble myself, when I walk meekly, I will be refreshed and revived, says the Lord. And I will rejoice in the Holy One of Israel. Amen. और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन हो जाएंगे. Amen. This is the secret of divine joy. Amen. Divine meekness is the secret of divine joy and gladness. स्वर्गीय खुशी और आनंद का रहस्य स्वर्गीय नम्रता है. Amen. दिव्य दीनता है. वहां से हम आगे बढ़ता. वहां से we move on to 53rd chapter and look at Jesus once again. हम 53 में जाता है और हम यीशु को देखता है. उसका दूसरा वचन, चैप्टर 53 वर्स 2. क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते. For he grew up before him like a young plant, like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. This was the description that the prophet would give about Jesus, our Savior. Hanging on the cross, he had no beauty in him. He had no comeliness. क्रूस पर के यीशु को देखो, कोई सुंदरता नहीं, कोई कोमलता नहीं है. इतना विरूप, इतना बदसूरत.
So marred he was. He had no beauty. There was nothing to attract the crowds to him. दीन होकर, नम्र होकर क्रूस पर, हरे वृक्ष के समान नहीं है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के भवन में हरे जैतून वृक्ष के समान बने रहने के लिए He became like a withered plant. ऐसा मुरझा गया, एक पेड़ की तरह वो बन गया. Like a withered plant, he was seen on the cross. That you and I will flourish and thrive like a green olive tree in the presence of God in the house of the Lord. वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था. He was despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief. Man, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी. Amen. He was in the thick of my agony and my anguish and my pain. मेरा दुख, संकट, परेशानी के बिल्कुल बीच में वो रहा. He didn't insulate himself. And he did not isolate himself either. वो अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं चाहा. वो अपने आप को इन परेशानियों से, दुख से, संकट से, क्लेश से, पीड़ा से अलग भी नहीं रखा. इसलिए हमने अभी अभी पढ़ा, वो उस ताप से हमें बचाने वाला शीतल छाया है. He's a cool shadow that will protect us from the scorching sun. Because he bore it all. उसने सह लिया वो. He allowed himself to be burnt in the fire of God's wrath. परमेश्वर के क्रोध की अग्नि में अपने आप को जला दिया उसने. इसलिए उससे दीन और दरिद्र कोई नहीं. There is none who was meeker and humbler than our blessed Lord. Man, वहां से वहां के बढ़ता. This was to show the captain of our salvation that we may emulate his example. हमारे अपना विश्वास का और उद्धार का कर्ता यीशु का दृष्टांत है यह. वो हमारा आदर्श है, उसका अनुकरण करे. वहां से आगे बढ़ता. वहां से हम 61 का पहला वचन पढ़ता. A very well known verse, but we will read once again. 61वां अध्याय, यशाया पहला वचन. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has appointed me to bring good news to the poor. दीन के लिए, नम्र के लिए, दरिद्र के लिए सुसमाचार लेकर पिता परमेश्वर ने मुझको भेजा है. God the Father has sent me with this good news to be proclaimed to the poor, to the meek, to the lowly, to the humble, to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison door to those who are bound. बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए और खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए. Behold our Savior. आमेन. हमारा उद्धारक को देखो, पिता परमेश्वर ने उसको इसी के लिए भेजा है, दीन और दरिद्र के लिए भेजा है. God the Father has sent His Son only for those who are meek and humble. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, God resists the proud, but gives mercy and grace to the humble and the meek. इसलिए पवित्र शास्त्र बार बार हमें यह बताता कि परमेश्वर गर्वियों का, घमंडुओं का विरोध करता, लेकिन नम्र और दीन लोगों की सहायता करता, उनके ऊपर करुणा बरसाता. वहां से आगे बढ़ता. We move from there to 66 and read verse 2 first. 66 अध्याय का दूसरा वचन. यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी हैं
All these things my hand has made. And so all these things came to me, declares the Lord. परमेश्वर यहोवा कहते हैं जो भी सृजाया गया वो सब मेरे हाथ से सृजाया गया. Everything that has been created by my hands. I own them all. And I'm pleased with them. They have been created for my pleasure. But what gives such delight to my heart is, he says, but he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word, this one to whom I will look. Amen. His eyes will not remain focused on the beautiful creation. Amen. इतने सुंदर सृष्टि है, उसके ऊपर वो चित्र नहीं लगाता, उसका आंखें नहीं लगता, लेकिन वो कहता है परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा. Dearly beloved, his eyes are searching for such people even today. ऐसे लोगों के तलाश में स्वर्ग है. Amen. His roving eyes, amen, are searching for such people, men and women, who have chosen to walk in humility and meekness. परमेश्वर की आंखें परख रहा है, पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे पुरुष और स्त्री के लिए, ऐसे लड़का और लड़की के लिए जो उसको वचन के सामने थरथराता है, जो दीन और नम्र है, and who tremble at his word. This is the one to whom I will look, who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Amen. Trembles at my word. दीन और खेदित मन का हो, humble and contrite in spirit and who trembles at my word. Hallelujah. हम वहां से आगे बढ़ता, उसके बाद हमें और एक वचन उसमें से पढ़ना है, 5वां वचन पढ़ना. तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो. Hear the word of the Lord. You who tremble at his word. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to waste his words, amen, on anyone who doesn't care to humble himself and keep trembling at his word and his voice. परमेश्वर उसका एक शब्द भी नष्ट नहीं करना चाहता ऐसे लोगों के लिए जो सुनेगा नहीं, जो उसको वचन के सामने थरथराएगा नहीं. इसलिए यीशु आकर कहता, he who has ears, let him listen, let him hear. जिसके कान है वो सुन ले, ऐसे यीशु ने कहा. He is calling, amen, such people. He is exhorting such people to listen to him, to tune their ears, to pick up heavenly noise, heavenly voice and heavenly counsel. स्वर्गीय शब्द को, स्वर्गीय वाणी को पकड़ने के लिए कान लगाने का आह्वान है. आमीन. यहोवा का वचन सुनकर जो थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो. He is inviting only such people to be in his counsel, that he can share his heart with them. वैसे लोगों का आमंत्रण देता है. वचन के सामने थरथराने वाले लोग, दीन लोग, नम्र लोगों को बुलाता है ताकि उसको गुप्त सभा में करे हो जाए, उसकी वाणी सुने, जिनके साथ वो अपना हृदय बांट ले, that he may confide in them, that he may hand over his counsel to them and through them. वहां से मैं आगे बढ़ता, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में चले जाता. Now I must speed up. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पहला अध्याय, कई बार हमने ये देखा है, भाई हाथ है, आपको मुझको नहीं इसके लिए ढूंढना पड़ता. पहला अध्याय का 6वां वचन. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं. Look at this man, Jeremiah. Oh Lord God, behold, I do not know how to speak. I'm only a youth. सुलेमान कहता, आना जाना नहीं आता. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं लड़का हूं. Was he dumb? वो गूंगा था क्या? नहीं था. But who am I to be an oracle of God? परमेश्वर का वक्ता बनने के लिए मैं कौन हूं? उसका मतलब है, ऐसे भविष्यद्वक्ता मैंने यही कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य. Even Isaiah would say the same thing. I'm a man of unclean lips. Those who tremble at God's word, those who are humble and meek, will hear from God and will be sent on his behalf. Amen.
And they will be bold like lions. And they will be endowed with such wisdom and understanding from above. जो परमेश्वर के वचन के सामने थरथराता, परमेश्वर के सामने दीनता में चलता, नम्र होकर चलता, वो इतना हिम्मतवान बनेंगे सिंह समान, और वो लोग स्वर्गीय ज्ञान और समझदारी को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की ओर से भेज दिया जाएंगे उसको महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए. Such are the people who will be sent on his purpose, says the Lord. वहां से हम आगे बढ़ता, वहां से हम 26 में चले जाता. We take some glimpses and move on. 26:12. 26वां अध्याय का 12वां वचन पढ़ता, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से. तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यद्वाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है. Jeremiah would make it very clear. He has not brought out anything from his hat or from his pocket. यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता अपने मर्जी से और अपना पॉकेट से निकालकर कुछ नहीं कहा. परमेश्वर यहोवा ने यह बात किया है. जिसका विरोध लोग करते थे, जिसके कारण लोग उनसे नफरत करते थे. People hated him because of this, and people rebelled against the word of God. But he says, it is not from me, it is from the Lord. उसके बाद वो क्या कहता और सुनता है, मैं बहुत महान आदमी हूं, तुम मुझको छू नहीं सकता, ऐसा नहीं कहता. 14वां, देखो मैं तुम्हारे वश में हूं. But as for me, behold, I am in your hand. I am so helpless, I am so meek. I will not take a revenge upon you. I will not even defend my case. वो कहते मैं तुम्हारे ऊपर बलवा नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर मैं बदला नहीं लूंगा, मैं मेरे लिए वकालत भी नहीं करूंगा. मैं तेरा हाथ में है, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला है और जो ठीक हो वही मेरे साथ करो. Do whatever you want with me, but I'll continue to speak. Amen. Because I am meek and humble, because I tremble at God's word, I become a lion when I speak the word of God. जो नम्र और दीन होकर प्रभु को उपस्थिति में बैठता और परमेश्वर के वचन के सामने थरथराता, इसके कारण सिंह समान गरजते हुए मैं परमेश्वर का वाणी सुनाऊंगा. At the same time, I can't defend myself. I'm not bold enough to argue back. मैं इतना हिम्मतवान नहीं है कि तुम्हारे साथ वकालत करके जीतूं, या मुझे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप को बचाऊं. You do whatever you want. आप लोग कुछ भी चाहे कर सकते हैं. वहां से हम आगे बढ़ता. We move from there to the prophet Zephaniah. Zephaniah का पुस्तक का दूसरा अध्याय से देखते हैं. Book of Zephaniah, the prophet, chapter 2, verse 3. हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो. Seek the Lord, all you humble of the Lord, humble of the land, who do his just commands. परमेश्वर का कहना मानने वाले नम्र लोगों, परमेश्वर का मुख खोजो. Amen. This exhortation comes to only those. Amen. This invitation is sent to only those. यह आमंत्रण ऐसे लोगों को भेजा जाता है, यह आह्वान ऐसे लोगों को दिया जाता है परमेश्वर का मुख खोजने के लिए, जो दीन है, नम्र है, यहोवा का नियम को मानने वाला है. धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो. Seek righteousness, seek humility. When I do not seek humility, I cannot seek righteousness. यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को ढूंढो. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. In order to seek the kingdom of God and his righteousness, I need to be seeking humility and meekness. परमेश्वर के राज और परमेश्वर की धार्मिकता का खोजी होने के लिए मुझको नम्रता की और दीनता की खोजी होना अवश्य है. Amen. कहते हैं, you may be hidden on the day of the anger of the Lord. ऐसे लोग यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाएंगे. Such people will find a refuge and shelter. Amen. Escaping the great tribulation. वो महापीड़ा के समय में प्रभु उन्हें छुपाएगा. Amen. उन्हें सुरक्षित रखेगा. Dearly beloved,
Humility is not a show business. Meekness is not to impress upon others. यह नम्रता और दीनता दिखावट के लिए नहीं है, दुनिया से लोगों से कुछ नाम कमाने के लिए नहीं है, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, मेमना के क्रोध से बचकर रहने के लिए है. It will keep us protected against the wrath of the Lamb of God. Man, वहां से आगे बढ़ता, तीसरा अध्याय का 12-13 पढ़ता. We look into the 3rd chapter and read 12-13. क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों के एक दल बचा रखूंगा. Amen. But I will leave in your midst a people humble and lowly. That will be the remnant of Israel. Amen. इसराइल के बचे हुए लोग ऐसे होंगे. They only will be spared the sword of the enemy. दुश्मन के जो हथियार से वे ही बचेंगे, तलवार से वे ही बचेंगे. दीन और नम्र लोग. Amen. A people humble and lowly, they shall seek refuge in the name of the Lord. Amen. वो लोग ऐसे यहोवा के नाम की शरण लेंगे. Only such people will find refuge in Him, comfort in Him, security in Him. ऐसे लोग हालेलुया परमेश्वर में आश्रय पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे. नम्र लोग, दीन लोग. Amen. बचाया जाएगा. They will be preserved and they will be protected. Amen. Those who are left in Israel, they shall do no injustice, no speak lies. इसराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना उनको मुंह से छल की बातें निकलेंगे. वे चरेंगे और विश्राम करेंगे. There shall be no guile found in their mouth, no deceitful tongue they will have. But they shall graze and lie down, and none shall make them afraid. Hallelujah. Such people will rule and reign with Christ the King. यीशु क्रिस्त जो राजा है, उसके संग वे लोग राज्य करेंगे. Amen. प्रभुता करते रहेंगे. Amen. निडर रहेंगे. They shall be unafraid. Hallelujah. They shall rule and reign with God, enjoying the heavenly peace and bliss. स्वर्गीय धन्यता और स्वर्गीय शांति और आनंद को प्राप्त कर कर परमेश्वर के संग, यीशु राजा के संग नित्य नित्य राज्य करेंगे. Oh, they shall be with King Jesus. Amen. Reigning with Him. वहां से वहां आगे बढ़ता, हम जुना नियम के अंतिम पुस्तक में चले जाता. We move from there to the last book of the Old Testament, Malachi. मलाकी भविष्यद्वक्ता का पुस्तक का 3रे अध्याय का 16 पढ़ता. 3rd chapter 16th verse. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की. Then those who feared the Lord spoke with one another, and the Lord was in the midst. Hallelujah. Inclining His ears to pick up every syllable. Amen. ये परमेश्वर के जन, भय मानने वाले नम्र लोग, भय मानने वाले लोग हैं ये लोग. These are the people who feared the Lord. They spake with one another. Amen. आपस में बातें की. And यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था. He was very attentively listening to them. Hallelujah. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before Him for those who feared the Lord. ऐसे लोगों के लिए एक खास ग्रंथ है परमेश्वर के पास. There is a special book. Man. A book of remembrance. Kept with God Himself. That's only for those who are meek and humble, who fear the Lord, who tremble at His word. परमेश्वर को भय मानने वाले, परमेश्वर के वचन के सामने थरथराने वाले नम्र लोग, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक किताब रखा है. उसमें सारी बात लिखी हुई है. That they could be rewarded. Man, when He comes, when Jesus comes, यीशु आएगा उनको प्रतिफल लेकर आएगा. They shall be mine, says the Lord of hosts. सेनों के हो ये कहता है, जो दिन में ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरा निज भाग ठहरेंगे. Amen. On the day of the Lord, there shall be His prized possession. Amen. The priceless pearl and the costliest jewel in His hands. वे लोग रहेंगे अनमोल रत्न समान, कीमती मोती समान, परमेश्वर के हाथ में शोभायमान होकर रहेंगे. आमीन. इसलिए हमने सुना था कि ऐसे लोगों को मैं शोभायमान बनाऊंगा. I will decorate them. Hallelujah. I'll make them shine. They shall be full of glory.
वो महिमा को पूर्णता में धारण करेंगे, वो लोग चमकेंगे तारे समान। वहां से आगे बढ़ता, अभी हम नया नियम में चले जाता और हमें कुछ कुछ वचन पढ़ के बहुत ही परिचित बाय हार्ट आने वाला वचन है, इसके लिए मैं आशा रखता हूं कि बहुत जल्दी हम समाप्त करेंगे। मत्ती 5वां अध्याय का 5वां वचन पहला पढ़ता। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दिस इज नॉट लिमिटेड इन ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स, ये जुने नियम के संतों के लिए नहीं है। अब यीशु स्वयं कहता, ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ, डियरली बिलोवेड। दिस इज फॉर अस, क्राइस्ट इज स्पीकिंग टू अस। यीशु क्रिस्त हमसे बातें कर रहा, कलीसिया से बातें करता। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे। ब्लेस्ड आर द मीक, दे शैल इनहेरिट द अर्थ। हालेलुया। हम यीशु के साथ राज करेंगे, यीशु के संग बने रहेंगे। वी शैल अबाइड विद हिम फॉरएवर, वी शैल रूल विद हिम फॉरएवर। वहां से हम आगे बढ़ता और उसका 11वां अध्याय में जाता है। बहुत कुछ हम वहां से मनन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। यही पृथ्वी पर हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, हम राज करेंगे। हमें दुश्मन के ऊपर प्रबल हो जाएंगे। वी शैल नॉट बी स्लेव्स हियर ऑन अर्थ टू सिन एंड द एनिमी, but we shall overcome him, we shall rule over him. वहां से आगे बढ़ते 11 chapter 29 and 30। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, take my yoke upon you and learn from me। तुम्हें झुकना पड़ेगा जुआ उठाने के लिए। You have to bend your shoulders that you can bear yoke with him। And only when I bend, only when I humble myself, only when I am meek enough to bear the yoke with him, I can learn of him। जब तक मैं झुकता नहीं है, जो उठाने के लिए नम्र नहीं होता, दीनता से नहीं चलता, तब तक मैं उससे सीखूंगा नहीं, सीख नहीं सकता। कहता मुझसे सीखो, उसे सीखने के लिए यही एकमात्र मार्ग है। Those are the people who tremble at his word, those are the people who have the right fear of God। All this the Lord has been speaking to us these days। बीते हुए दिनों में प्रभु ये सारी चीज हमें याद दिलाता था। परमेश्वर को भय मानने वाली बात है। हमें कहते कि नम्र हो, अगर दीनता से चलो तब तू सीखोगे तो ज्ञान प्राप्त करोगे, समझदारी आओगे। हमें only if you learn of me you will have divine wisdom and divine understanding which would birth divine boldness। तभी हमें दिव्य साहस दिया जाएगा। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। I'm gentle and lowly in heart। गुरु के समान बनना ही चेला के लिए उचित है। It is best for the disciple to be like the master, and he says, I am meek and lowly। Amen। He himself is saying, I am meek and lowly, and you will find rest in me। Hallelujah। You will find rest in me, ऐसा कहता है। Amen। यही हमने देखा, यशया भविष्यद्वक्ता के मुंह से हमने सुना कि विश्राम पाओगे शीतल छाया में, सुरक्षित जगह में। You will find rest in a secure place, in the cool shade of his wings। My yoke is easy and my burden is light। मेरा बोझा सहज है, जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। This will not break your back, this will not break your shoulders। तुम्हारे कंधे को, तेरे पीठ को ये तोड़ने वाली बात नहीं है। It is not impossible, it is not difficult, because of the Holy Spirit that is abiding in you and me। Amen। We will walk bearing the yoke with him, being yoked together with him। पवित्र आत्मा जो मुझ में और आप में वास कर रहा है, उसकी सहायता से हम चलेंगे, जो उठाकर चलेंगे, यीशु के संग चलेंगे। आमेन। सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, विश्राम पाएंगे। वहां से आगे बढ़ता 15 अध्याय में चले जाता, 15 chapter 26। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। He answered, it's not right to take the children's bread, throw it to the dogs। Man, क्या हमें पता है, सोर सीदोन के प्रदेश से जो कनानी स्त्री आई थी, is about the Canaanite woman who had come all the way from Tyre and Sidon।
And the Lord would retort. First, God would apparently ignore her. पहले तो ऐसा लगता है कि यीशु ने उसका निरादर किया, देखा ही नहीं है, इग्नोर किया. उसके बाद में कहते हैं कि कुत्तों को देने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है, बच्चे लोगों के लिए है. What an insult! Jesus would turn to her and say that I have no bread for dogs. This precious bread is for the children. It's not good for me to throw them before dogs. The woman said, I am one of those dogs. I'll be pleased with the crumb that falls from the table. If this is not humility and meekness, what is it? वो स्त्री कहती है मैं कुत्ता हूं, लेकिन मेज पर से जो गिरता है वो छोटा टुकड़ा भी काफी है मेरे लिए. Dearly beloved, I covet the spirit that I observe in this woman. यह स्त्री में जो नम्रता है वो आत्मा को मैं प्राप्त करना चाहूंगा. वहां से आगे बढ़ता, बाकी उसके साथ क्या हुआ आप जानता है. You know what was the outcome of that humility, that you kneel down and worship. The rest is story. वो घुटने दिखाता और नम्रता में आराधना करती है वो, और बाकी सब आप जानते हैं. वहां से आगे बढ़ता, 16 अध्याय में से पढ़ता, 23 पढ़ता. उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो. He turned and said to Peter, get behind me, Satan. Look at that. Peter was prepared to die for him, would follow him even though from a distance. पतरस उसके साथ मरने के लिए तैयार था. वो कम से कम उसके हृदय में आग्रह था. And he'd follow Jesus though from a distance. कुछ दूर से है तो भी पतरस उसका पीछा करता. पतरस सब कुछ छोड़ कर आया. अरे यीशु कहते शैतान हट जा. You Satan, get behind me. Peter will curse Jesus. Peter will be broken with you. पतरस का मुंह से श्राप का शब्द नहीं निकलेगा. अबेल वो भीतर टूट पड़ेगा. अबेल Jesus loved Peter so much. और जो यहूदा इसके ड्यूटी आता चुंबल से उसको पकड़वाने के लिए, he calls him friend. But when Judas Iscariot would come to betray him with a kiss, Jesus would address him as friend. Jesus was pleased with what he was doing? No. Because Jesus had earlier told the disciples that I had chosen all of you, but out of you 12, one is a devil. यीशु ने 12 लोगों को पहले बताया था, मैंने 12 लोगों को चुन लिया सही है, लेकिन तुम में से एक है वो शैतान है, ऐसे कहा था. But he wouldn't call him Satan when he came to betray him. उसको पकड़वाने के लिए जब वो आता तब उसने उसको शैतान करके नहीं बुलाया. Jesus had no interest left in him, dearly beloved. यीशु का भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहा. He was interested in Peter. If he rebukes you because he loves you. अगर यीशु डांटता है, मुझको डांटता है, उसके एकमात्र कारण है वो मुझको छोड़ नहीं दिया, मुझसे प्यार करता है वो. Blessed is the one whom he corrects. जिसका भूल सुधार वो करता है वो धन्य है. आगे बढ़ता, जो नम्र है, हालेलुया, उसको वो करेक्ट भी करता. 18, 3-4, 18. Only the humble and the meek will be corrected by him, will be guided by him. 18, 18 3-4. और कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. Hallelujah. Sometimes we misunderstand this and misinterpret this. कभी कभी हम ये गलत समझते हैं और गलत व्याख्या करते हैं. शिशु समान बनने का अर्थ ये है वो है नहीं है.
God has made it very clear. Jesus made it very, very clear. Be humble like a child. Hallelujah. उसने तुरंत बताया कि मेरे जैसा आदमी लोगों के गलत व्याख्या करने वाला, इसके लिए यीशु ने बताया, स्पष्टता से बताया कि कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा ना करेगा, जैसे इस्हाक ने किया, यिर्मयाह ने किया, हालेलुया, दाऊद ने किया, वैसा नहीं करता तुम। Amen. We cannot be anyone in the kingdom of heaven. स्वर्ग राज्य में हम कोई भी नहीं बने रहेगा। Hallelujah. This is not to the Old Testament saints that Christ is speaking to us. विद्युजनों के संतों के लिए नहीं है dearly beloved. ये बात हमारे लिए है प्रियो। प्रभु हमसे बातें कर रहा है। आगे बढ़ता 23 में चले जाता। We move from there to 23rd chapter of Matthew. We not come out of Matthew yet. 11. The greatest among you shall be your servant. जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने. That's the way. That's the way to rule with Christ, to reign with Christ. यीशु के संग राज्य करना है, यीशु के साथ प्रभुता करना, यही रीति है. दास बनना. Make me a humble servant, O Lord. Let me be meek, O Lord. मुझको नम्र बना, मुझे दीन बना, मैं सेवक बनकर रहो, ताकि मैं तेरे संग बने रहो. That I may abide with you, reign with you. Make me humble, O Lord. 22nd. Whosoever swears by heaven swears by the throne of God, and by whom sits. 22. 23 Whosoever swears by heaven swears by the throne of God, and by him who sits upon it. 23 पढ़ना, माफ करना. एक कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. You tithe and you do a lot of things. सारी चीज आप जानते हैं. You're not happy with those people who are the most righteous people in inverted commas of that day. वो जमाने के सबसे धर्मी लोगों के विषय में कहते हैं, हाय, woe to you, woe to you, you scribes and Pharisees, you hypocrites. तुम लोग इतना दशमांश देने वाला है, इतना देता है, सारे छोटे छोटे चीज में गिन के देता है. But he is not pleased with all that. No sacrifice would please him, just as a contrite heart and a humble soul. कौन सा भी बलि उसको प्रसन्न नहीं करेगा. जैसे एक नम्र मन और एक टूटा हुआ हृदय इकट्ठा. वहां में बहुत ज्यादा खड़ा नहीं रहना है. वहां से आगे बढ़कर मरकुस में चले जाना. We move from there to Mark 5th chapter, 5वां अध्याय. मरकुस का 5वां अध्याय का 22 पढ़ते हैं. सेईर नामक आराधनालय के सरदारों में एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. Seeing him, he fell at his feet. याईर नामक एक मनुष्य वो आया. आराधनालय का प्रमुख है वो. He is a ruler of the synagogue, a highly respected man, a man of great standing in the society. समाज में उसका बड़ा ऊंचा स्थान था, बड़े आदरणीय व्यक्ति था. आया पब्लिक में, on the roadside. He kneeled down before Jesus. Hallelujah. Shedding all his pride and arrogance. उसके सारे अहंकार और सारी जो गर्व है वो सब छोड़कर झुकता है, घुटने टिकाता है सड़क के किनारे पे यीशु के सामने. Hallelujah. You know the outcome. हमें पता है उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. वहां से आगे बढ़ता, अब लूका के सुसमाचार में चला जाता. वहां भाषण की जरूरत नहीं है. We have this picture very clear in front of our eyes. हमारे नजरों के सामने तस्वीर बहुत सुंदरता में आता है. अब जानता है उसके बाद में क्या हुआ. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय में आया. 6 और 7 पढ़ता. माफ करना. यीशु उनके साथ गया
पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए. When he was not far away from the house, the centurion sent friends, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. कौन है ये? सरदार, सूबेदार है. अमेन. अधिकारी है सेना का, रोमन गवर्नमेंट का. He is a centurion, a Roman centurion. He had all the right to even ask Jesus, to demand him to visit him. उसके पास हक था यीशु को ऐसा आज्ञा देने के लिए, आओ मेरे घर पे. नहीं, कहते हैं मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता, मेरे जैसा कीड़ा इतना अहंकार से चलता. But here is a Roman centurion, you would say, I'm not worthy, I do not qualify for you to visit my palacious house. मेरे इतना सुंदर महल जैसा घर में आने के लिए, तू प्रवेश करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं. We know what happened to him. हमें पता है ऐसे लोगों के साथ क्या होता. Man, hallelujah. Therefore I did not presume to come to you. वो कहते हैं इसके लिए मैं अकेला, मैं खुद तेरे पास आया भी नहीं है, मैं अशुद्ध हूं. I felt so unclean and defiled, I dared not come to you. I sent elders of Jews to you. यहूदा लोगों के प्राचीनों को मैं इसके लिए तेरे पास भेजा कि मैं खुद अपने आप को योग्य नहीं मानता, कि मैं अशुद्ध हूं. तेरे पास आने के लिए, विनती करने के लिए आने के लिए भी मैं अयोग्य हूं. I don't deserve to approach you. May I come to the throne of grace, thanking God for His Son, thanking Jesus for His precious blood. Amen. आइए मैं हमेशा उसको कृपासन के पास आओ, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसको पुत्र को भेज दिया उसके लिए, पुत्र को धन्यवाद देते हुए कि उसने उसका लहू बहा दिया मेरे लिए. वहां से आगे बढ़ता हमें लूका का 23 में चले जाना. We move from there to 23rd chapter of Saint Luke. 33-34 पढ़ना. तब वे उस जगह जिसे कोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां से और उनको कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया. 33. When they came to the place that is called the Skull, they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. यह हमने यशायाह 53 में देखा था. Now see the real picture here. Jesus hanging in between two criminals. Amen. They crucified him and the criminals. मध्य भाग लिया वो, कुकर्मियों का मध्य भाग लिया. वो जगह मेरा था, the chief of sinners, the most wretched man on earth. वो जगह मेरा था, dearly beloved. It was reserved for me. कुकर्मियों के बीच का मध्य स्थान, सबसे नीच इंसान का मेरा था वो. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. उसके बीच में से परमेश्वर का पुत्र चिल्ला कर कहता, माफ करो, क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या कर रहा है. They do not know what they are doing. Forgive them. That is meekness and humility at its highest. नम्रता और दीनता पूर्णता में वहां प्रकट होता, जिसके कारण ऐसी करुणा की नदियां वहां से बहने लगता है. Because of it, rivers of mercy will flow from there. Hallelujah. वहां से वहां के बढ़ता. हम जब समझते हैं, इसके लिए मैं वहां से प्रचार नहीं करता. We know all this, and we know what is the outcome. There is still a fountain flowing from Calvary's brow. अभी भी एक ऐसा स्रोत है, वो सुखी नहीं जाती है, सूखती नहीं है वो. It's a fountain that shall never run dry. For me to get washed, incessantly cleansed. सदा सर्वदा
मैं धोए जाओ, मैं पवित्र बन रहो। इसके लिए वहां से करुणा की नदी बह रहा है, कृपा की नदी बह रहा है। आगे बढ़ता यूहन्ना में आता, we move from there to St. John's Gospel and look into 17th chapter, 17 अध्याय का 22 पढ़ता, 17th chapter 22nd verse। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है। The glory that you had given me, I gave to them. That, hallelujah. The glory that you gave me, I given to them, that they may be one as we are one. Hallelujah. यीशु कहते जो महिमा था, मेरा वस्त्र, महिमा का वस्त्र मैंने उतार कर उनको दिया है। अभी हमें याद आता मूसा का अभिषेक से कुछ निकाल कर उस हफ्ते के ऊपर रखता, और उनमें से कुछ लोग भविष्यवाणी भी दिए थे। We remember Moses, out of whom God would take some of his anointing and place it on 70 others, so that some of them would start prophesying. Amen. This is not a fragment of his glory that Jesus has given to us. He has given to us the full garment of glory. यीशु उसके महिमा के एक अंश नहीं दिया मैं। This is meekness. His meekness has made me great. His humility has made me great. इसलिए वचन में मैं इसे पढ़ता, उसकी नम्रता ने मुझे महत्व दिया है, उसकी दीनता ने उसको मुझको महान बनाया है। He has parted with his full glory, dearly beloved. May I start reflecting it more and more. उसने उसको पूरी महिमा मुझको दी है, मैं उसको ज्यादा और ज्यादा प्रतिबिंबित करते रहूं। हम वहां से आगे बढ़ता, we move from the book of from the Gospels and we look into the letters and look into Galatians. Galatians chapter 5 verse 23. Namrata or samyam, the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit, gentleness, self-control, namrata, deenta, amen, vinay, humility, meekness, gentleness. That is the fruit of the Spirit. God wants us to be fruitful. Jesus wants us to be fruitful so that God the Father will be glorified. पिता परमेश्वर अधिक महिमा प्राप्त करने के लिए आमेन, हमें फलवंत होना आवश्यक है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फल यह है, हालेलुया, a very precious fruit thereof is humility, is meekness. वहां से आगे बढ़ता 6 अध्याय का पहला, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो जो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Correcting, trying to restore is not cruelty. वो सुधार करना और कुछ गलत मार्ग को दिखाना, गलत मार्ग के विषय में शिक्षा देना, उसके विरोध में शिक्षा देना क्रूरता नहीं है। That's the mark of humility and meekness. Others do not care. अगर कोई मेरा गलती दिखाता है मुझको, वो सुधार करता, मुझे उपदेश देता है, तो वो क्रूर नहीं है, वो मेरा विरोधी नहीं है। उसमें स्वर्गीय नम्रता है, दिव्य विनय है। He truly is blessed with divine meekness and heavenly humility. Oh, blessed be such people and blessed be God for such people. ऐसे लोग धन्य हैं और ऐसे लोगों का परमेश्वर धन्य है। वहां से आगे बढ़ता, हम एफेसियों में चले जाता, एफेसियंस चैप्टर 4:2। मिटाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बनाना है, मूल सुधार करना है। Not to destroy such people, not to break them to pieces, but to correct them, amen, and to guide them. Ephesians 4 अध्याय का 2 वचन,
अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. सह लेने के लिए, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए मुझ में नम्रता की जरूरत है, दीनता की जरूरत है. I need to be blessed with this meekness, endowed with this humility, so as to bear the burden of others. Hallelujah, to encourage and strengthen others. एक दूसरे को हिम्मत दिलाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए मुझ में यह नम्रता की जरूरत है, ये दीनता की जरूरत है. वहां से आगे बढ़ता, हम कोलोसियों में नजर डालता, बुक ऑफ लेटर टू द कोलोसियंस चैप्टर 3:12. इसलिए परमेश्वर के चुने हुआ के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो. Put on as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility and meekness and patience, in order to put on the robe of Christ's glory. I need to put on this inner wear of humility, of meekness, of kindness and patience. Hallelujah. यीशु क्रिस्त की महिमा का वस्त्र को ऊपर पहनने के लिए अंदर मुझे ऐसा वस्त्र पहनना है. आमीन. भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता का वस्त्र पहनना. Hallelujah. May I be wearing these wears so that I'll be clothed with glory. महिमा से अलंकृत किया जाने के लिए, ओढ़ लिया जाने के लिए मुझे ये वस्त्र पहनना अवश्य है. Dearly beloved, we looked at Elisha, would wear the robe of double anointing. वो दुगना अभिषेक का वस्त्र पहनेगा, लेकिन उसके पहले उसको अपने आप को नम्र करना था, अपने आप को दीन करना था. Before that, he had to have a meek walk with the saint. He had to humble himself. Amen. वहां से वहां आगे बढ़ता, पहले तिमोथी में चले जाता. We move from there to 1 Timothy. पहला तिमोथी 6वां अध्याय का 11वां वचन. 6th chapter 11th verse. पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछे कर. You, a man of God, flee these things. Love of money, love of worldly pleasure, love of worldliness. सारी चीज को छोड़ो. पैसा का लालच और ये दुनिया का आकर्षण, दुनियादारी, ये सब चीज को भागो, छोड़ के भागो. Pursue righteousness. धार्मिकता को खोजी हो. कैसे धार्मिकता को खोजी होगा? Godliness होना चाहिए. परमेश्वर को भय होना बहुत जरूरी है. In order to pursue righteousness, I need to have godliness in me. I need to have faith, love, steadfastness and gentleness. Amen. In order to seek the righteousness of God, मुझ में भक्ति होना, परमेश्वर को भय मानना है, विश्वास होना, प्रेम होना, धीरज और नम्रता का पीछा करना है. Hallelujah. If I do not follow after these virtues, I may not be clothed with the full glory of Christ. ये सारे फल मुझ में नहीं दिखाई देता तो यीशु की महिमा का वस्त्र मैं नहीं पहन सकूंगा. हम आगे बढ़े, दूसरा तिमोथी में चले जाता, दूसरा अध्याय, 2 Timothy 2nd chapter 25th verse. वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, correcting his opponents with gentleness. कहते विरोध करने वाले अनेक होंगे, टट्टा उठाने वाले होंगे, बलवा करने वाले होंगे. There will be people who will reject your counsel, who will oppose you, and will also rebel against you. But try to convince them gently, with gentleness and meekness. Correcting his opponent with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. ऐसा इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने. Not to show off, not to show that we have the authority. हमारे पास उसका अधिकार ये दिखाने के लिए नहीं है कि लोग सत्य को पहचाने,
यीशु के मार्ग में आए, that they come back to God's ways, Jesus' ways, and receive the truth. वहां से हम आगे बढ़ता, ताकि कोई मिट न जाए, नष्ट न हो जाए. We move from there to the letter of James. हम याकूब की पत्रिका में नजर डालता. याकूब कई बार ये कहता है, लेकिन हम पहले अध्याय का 21 पढ़ता. Jesus' brother James would always remind us of this, but we read only a few verses. पहले अध्याय का 21 पढ़ता. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. कहता है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो. वचन को अगर नम्रता से ग्रहण करोगे तो जो बोया गया वचन है, the word that has already been told, already has been spoken to us, already has been preached to us, is already implanted, which is able to save your souls. वही हमें बचाएगा. इसलिए यूनानी में हमने पढ़ा, वचन के सामने थरथराने वाले नम्र लोग, दीन लोग, those humble and meek people who tremble at God's word, right? They will be saved to the uttermost. Hallelujah. वो लोग आत्यंतिक रूप से उतार पाएगा, छुड़ाया जाएगा, छुटकारा पाएगा. तीसरा अध्याय 13, 3rd chapter 13th verse. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his work in the meekness of wisdom. तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है. Now it is very, very clear. It was not my opinion that heavenly wisdom births and nourishes heavenly meekness. स्वर्गीय ज्ञान दिव्य नम्रता को और दीनता को उत्पन्न करता है और उसको बढ़ाता है. कहते हैं ज्ञानवान नम्र बने रहेंगे. The understanding and the wise will be meek and humble. Amen. कहते ऐसा अच्छा चाल चलन से प्रकट करो, तुम्हारी समझदारी प्रकट हो जाए. Through such works of meekness and humility, arising out of divine wisdom. स्वर्गीय ज्ञान के कारण, समझदारी के कारण जो उत्पन्न होता, वो नम्रता पूर्व, वो विनय के साथ हम कार्य करें, सिखाए, सेवा करें. That we may teach, that we may serve, and we may walk meekly and in humility. चौथा अध्याय का 6 पढ़ता पहला. 4th chapter 6th verse. वो तो और भी अनुग्रह देता है. इस कारण वो लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता. God opposes the proud but gives grace to the humble. In order to maximize on his grace. Hallelujah. May we walk humbly. हम नम्र होकर चले तो कृपा के ऊपर कृपा हम प्राप्त करेंगे. Whereas he resists the proud. वो अहंकारियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, ऐसा लिखा है. वहां से हम आगे बढ़ता, उसका और एक वचन पढ़ता, 10वां वचन. प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुझे शिरोमणि बनाएगा. Humble yourself before the Lord and he will exalt you. This is what we read from the book of Malachi. मलाकी पुस्तक से हमने ये पढ़ा. शिरोमणि बनेंगे हम, नम्र बनकर रहोगे तो, दीनता में चलेगा तो. If you walk in meekness and humility, we shall shine like a jewel in his hand. Amen. He will exalt you. In order to be exalted in the kingdom of God, to reign with him in glory. महिमा में उसके संग राज करने के लिए आइए हम नम्रता में चले, हमें दीन होकर चले. मैन आगे बढ़ता हम पहले पत्रस में आता. पहले पत्रस 3 अध्याय का 4वां वचन पढ़ता. 1 Peter 3:4. अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. पहले पत्रस 3 अध्याय का 4वां पढ़ना. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से
सुसज्जित रहे. Hallelujah. Let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit. The beauty of a gentle spirit, the beauty of a humble spirit is eternal. Hallelujah. Amen. Imperishable. Amen. Let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Hallelujah. ये कोमलता है, ये सुंदरता है, ये खूबी है, जिसको राजा चाहता है. This is the beauty, this is the comeliness. Amen. This is what attracts the king, my bridegroom. मेरा दुल्हा को आकर्षित करने वाली सुंदरता यह है, राजकुमारी. Oh ye princess, oh ye daughter of Zion, this will attract your king. He will delight in your beauty. The beauty of meekness and humility, of gentleness. Amen. दुल्हा उसे प्रसन्न होगा, आकर्षित होगा, चाहेगा वो हमारा राजा, हमारा दुल्हा. ये खूबसूरती, ये सुंदरता, ये खूबी दीनता और नम्रता की. हालेलुया. आगे बढ़े, उसका 14 पढ़े. वो एक्चुअली औरत के विषय में कहता है, घर की स्त्री के विषय में कहता है. टॉकिंग अबाउट अ वाइफ, टॉकिंग अबाउट वीमेन ऑफ द हाउस. बट इट इज सो ग्लोरियस, amen, more glorious, amen, in the church and more relevant to the daughters of Zion. सिय्योन कुमारियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत शोभायमान है कलीसिया में. आमेन. आगे बढ़ता 14th वर्स पढ़ता, 14वां वचन पढ़ता. यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उड़ाते हो तो धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो, पर ना घबराओ. But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. दीन लोग, नम्र लोग कभी कभी बहुत कुछ सह लेता है, सहना पड़ता है. The meek and the humble will have to suffer a lot. But that's for Christ's sake. यीशु क्रिस्त के लिए है, वो धार्मिकता के लिए है. For righteousness' sake, you are blessed indeed, he says. Hallelujah. अमेन. तो धन्य है, लेकिन डरना नहीं है. You shall have divine boldness despite this meekness and humility that gives you strength to bear reproach for Christ's sake. यीशु क्रिस्त के सारे कारण निंदा भोगने के लिए हिम्मत देने वाली ये नम्रता और दीनता के कारण तुम बहुत कुछ सह लोगे. वो बहुत प्रतिफल का है. Does it sound contradictory in nature? ऐसा लगता है कि विरोध में बात करता? बिल्कुल नहीं. ये दीनता और नम्रता ऐसी हिम्मत को उत्पन्न करता है. Hallelujah. This meekness and this humility only will birth such divine boldness and confidence. Amen. Which is of great reward, just as we heard on last Sunday. पिछले द्वार को जैसे सुना, हमारी हिम्मत जो है बड़े प्रतिफल का है. हालेलुया. डरो मत, वो कहता. उसको 15 वचन भी हमने पढ़ा था. नहीं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. But in your hearts honor Christ as the Lord, as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks for you for a reason for the hope that is in you. Do it with gentleness and respect. लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन परमेश्वर को, यीशु क्रिस्त को हृदय में ऐसा पवित्र मानकर प्रतिष्ठित करो. Sanctify Jesus as Lord in your heart. Amen. The Holy God in your heart. And with all gentleness and meekness. Amen. Defend your precious faith. तुम्हारा जो पवित्र विश्वास है, आमेन, उसको मजबूती से पकड़ के रखो. आमेन. उसको प्रस्ताव करो, प्रचार करो. आमेन. Defend your faith. Amen. And even explain it. जो सवाल उठाता है उसको ये बात बताओ, बड़ी नम्रता के साथ बताओ, भय के साथ बताओ. With such fear of God and with such meekness and gentleness. Convince them when they ask you questions about your faith. Amen. विश्वास के विषय में जो कोई सवाल उठाता है, उनको ऐसे सिखाओ, बताओ, समझाओ, नम्रता में. हमें दीन होकर.
वहां से वहां आगे बढ़ता, उसका 5वें अध्याय में जाता, 5 और 6 पढ़ता, फिर चैप्टर 5 और 6। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों का अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। Likewise, ye who are younger, be subject to the elders. Clothe yourself, all of you, with humility toward one another. Clothe yourself with humility. Hallelujah. नम्रता को पहन ले सकेता, है, सिर्फ बुढ़ा लोगों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चे लोगों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए है। Not just for kids, not for the old, but for even young men. Be humble. This doesn't go well with young people. मैं सोचता था कि युवकों के लिए नहीं है यार, ये तो बच्चे लोग के लिए और बुढ़ा लोगों के लिए। कहते हैं नौजवानों, तुम भी प्राचीनों का अधीन रहो, परंतु सबके सब। It's not for few chosen ones, but all of you, all the children of God, all the young men and young women, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Peter is reminding once again, even the young people, that while God opposes and resists the proud, He gives grace to the humble. Amen? परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें पता चलता है ये यूनानियम के संतों के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है, उनसे ज्यादा हमारे लिए, क्योंकि महिमा को पूर्णता को धारण कर यीशु की दुल्हन बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। Clad with the full glory of Christ, in order to be a fitting bride to Jesus Christ. God has called us, elected us, and set us apart. आइए हम समाप्त करने से पहले एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य से। We read just one verse from the book of Revelation, chapter 3. तीसरा अध्याय का 8वां वचन पढ़ता। फिलाडेल्फिया के कलीसिया के लिए लिखता है, This is the word sent to the church at Philadelphia. I know your works. कहते मैं जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। I know your works, and I have opened a door which can not be shut by anyone, which no one is able to shut. I kept before you, set before you an open door. I know that you have but little power. मैं जानता हूं कि तुझ में सामर्थ्य कम है। आमीन। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। You have only little power, yet you have kept my word and have not denied my name. इतना सामर्थ्य नहीं दिखाई देता दुनिया की रीति से। By worldly standards, you have no strength in you. आमीन। कुछ भी नहीं है। अहंकार से कहने के लिए, गौर से करने के लिए कुछ भी नहीं है। There is nothing to boast about. There is nothing in me to pride in. Little strength. But I will open the door for you which you cannot open. तू नहीं खोल सकता ऐसा द्वार मैं तेरे लिए खोलूंगा, तुझ में वो खोलने के लिए सामर्थ्य नहीं है। Dearly beloved, the Lord promises to open such doors for us which cannot be opened by us, and He promises that those doors that He has opened will never be shut by anyone. और ऐसा द्वार जब वो खोलता हमारे लिए, वो द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। For the meek and the humble, such doors will be wide open which cannot be shut by the world. ऐसे नम्र लोगों के लिए, वचन के सामने तरतराने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ऐसे द्वार को खोल देगा जो दुनिया कभी बंद नहीं कर सकता। You kept my word, amen, and have not denied my name, amen. तू मेरे सामने नम्र होकर चला, मेरे वचन के सामने तरतराता था। You kept my word, you trembled before every word of mine, amen. You had the right fear of God. Amen. I will protect you, I will keep you. बहुत कुछ आगे और पढ़ सकता है। Hallelujah. This is God's word. Amen. Thus says the Lord to you and me. ये परमेश्वर का वचन है, आपके पास और मेरे पास भेज दिया गया।
जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मेरे जीवन में जो नहीं है वही वचन मुझे दिखाता है. I lacked in divine boldness and divine courage, which the word brought to my notice. And today I know I lack humility and meekness in me, which the word is exhorting me to seek after. मुझ में नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है. इस कारण आज वचन मुझे आह्वान दे रहा है, मैं इसको खोज में बने रहे, मैं इसको धारण करें. आइए प्रार्थना करते हैं. प्यारे पिता, हम आते हैं. मैं आता हूं प्रभु, मेरे परिवार के साथ आता हूं, मंडली के साथ आता हूं. कबूल करता प्रभु, मैं गर्व से गर्वित होकर चलता था. मुझ में अहंकार है प्रभु, मुझ में नम्रता बिल्कुल नहीं. मैं आता हूं, confessing my guilt, confessing my sin of pride and arrogance. I come, Father. मेरी जो अहंकार, मुझ में जो गर्व भाव है, सबको कबूल करते हुए मैं आता हूं. मुझे बना प्रभु. Teach me humility, O Lord. Give me meekness and gentleness. मुझ में ऐसे सौम्य भाव, नम्रता और दीनता है, ताकि मैं तेरे वचन के सामने तरतराते हुए तुझे प्रसन्न करने वाली जीवन बिताए, कि महिमा की पूर्णता को अपनाऊं. That I may walk meekly in obedience and in humility before you. आज्ञा पालन करते हुए नम्रता में चल, ताकि मैं पूरा महिमा को धारण करूं. That I may be adorned with the full glory of Christ when he appears. तेरे प्रकाश तू प्रत्यक्ष होगा तो पूरी महिमा से मैं दिखाई दो. तेरे हाथ में चमको. That I may shine in your hand, Master. Make me, O Lord, make me. मुझको बना प्रभु, मुझको ऐसा बना. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. आइए हम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाते हैं. पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बोलता है अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सखभागिता, अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के समूह के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के ऐसे लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ और उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, और पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे. आमीन और आमीन. करुणामय, प्रेमी और दयालु परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करेंगे, कोई कठिन न हो, कमी न हो, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, ज्ञान दे, समझदारी दे, स्वर्गीय नम्रता और दिव्य दीनता से भर दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन और आमीन. यहां सबों का अति सुंदर और एक धन्य आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. May the blessed Lord be with you all, give you peace and fill you with heavenly wisdom, heavenly understanding, bless you with divine boldness and divine courage, and also make you humble and meek, amen, and enjoy good health and peace of mind. In Jesus' name, amen. I wish you all a very blessed, glorious, anointed Lord's Day. Amen. God bless.